Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों। It's always a delight to know that you are there listening to this program. ये जानना हमेशा आनंद की बात है कि आप ये कार्यक्रम सुनने के लिए उपस्थित हैं। And I hope you're able to write to us and tell us what this program means to you. और मुझे आशा है कि आप हमें लिखकर बता भी पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम का आपके लिए क्या अर्थ है। We have begun in the last message talking about the 7 statements from the cross. पिछले संदेश में हमने क्रूस की 7 घोषणाओं के विषय में बात करनी शुरू की है। The first one was, Father, forgive them. पहली थी, पिता उन्हें क्षमा कर। And then the second one, which we're going to look at today, was the practice of that forgiving. और फिर दूसरी जिसे हम आज देखने वाले हैं वो थी क्षमा करने का व्यवहार। Let me begin by telling you a story. मैं आपको एक कहानी बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। The French Emperor Napoleon Bonaparte was one day reviewing his troops when his horse bolted out of control. फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था जब उसका घोड़ा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। So a young private leaped from the ranks and quickly calmed the animal. सो पंक्तियों में से एक साधारण सा नौजवान निकला और घोड़े को शांत कर दिया। And thus he bestowed upon the private an instant promotion. और इससे उसने उस साधारण सैनिक को तुरंत तरक्की दे दी। Smiling proudly, the soldier inquired, "Of what regiment, sir?" सम्मान से मुस्कुराते हुए सैनिक ने जानना चाहा, किस बटालियन में सर? "Of my guard," replied Bonaparte as he dashed down the lines. पंक्तियों से आगे निकलते हुए बोनापार्ट ने उत्तर दिया, मेरे सुरक्षा दस्ते में। Immediately assuming his new rank, the private turned captain walked over to join a group of staff officers. तुरंत अपने नए पद को संभालते हुए कैप्टन बना वो साधारण सा सैनिक अधिकारियों के समूह में शामिल होने के लिए चला गया। One of the officers said, "What is this insolent fella doing here?" एक अधिकारी ने कहा, ये गुस्ताख आदमी यहाँ क्या कर रहा है? "I am captain of the guards," says the young man. मैं सुरक्षा दस्ते का कैप्टन हूँ, उस नौजवान ने कहा। And the officer said, You are just a private. What makes you think you're a captain?" और अधिकारी ने कहा, तू एक साधारण सिपाही है, तुमने ये कैसे सोचा कि तू कैप्टन है? At that moment, the young man pointed to the emperor and confidently responded, "He said it." उसी क्षण जवान व्यक्ति ने सम्राट की तरफ इशारा करते हुए विश्वास के साथ उत्तर दिया, उसने कहा है। "I beg your pardon, Captain," the officer answered politely. अधिकारी ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कैप्टन। "I was not aware of your promotion." मुझे आपकी पदोन्नति का पता नहीं था। That soldier did not feel like a captain, उस सैनिक को एक कैप्टन होने का एहसास नहीं था, nor did he wear the insignia of a और captain. न ही उसने कैप्टन का पद चिन्ह पहना हुआ था। All he had was the word of the emperor, and that was enough. उसके पास केवल सम्राट का वचन था और वो काफी था। The true Christians have the assurance of their salvation. सच्चे मसीहियों को अपने उद्धार का आश्वासन है। True Christian can be sure of heaven right now, not because of how good they are, सच्चे मसीही स्वर्ग के लिए इसी वक्त आश्वस्त हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो कितने अच्छे हैं or how righteous they are, या वो कितने धर्मी हैं, or that they are better than others. या कि वो दूसरों से अच्छे हैं। No, the assurance of salvation stems from the fact that God said it. नहीं, उद्धार का आश्वासन इस तथ्य से पक्का होता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। God promised it through Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इसका वादा किया। Our emperor said it. हमारे सम्राट ने ऐसा कहा है। Our Lord said it. हमारे प्रभु ने ऐसा कहा। Our master said it. हमारे स्वामी ने ऐसा कहा। Now what did he say? अब उसने क्या कहा था? He said that all those who come to Jesus Christ by faith will be eternally saved. उसने कहा, वो सब जो विश्वास से यीशु मसीह के पास आते हैं बचाए जाएंगे। And this assurance of salvation is the second statement that Jesus made from the cross. और उद्धार का ये आश्वासन वो दूसरी घोषणा है जो यीशु मसीह ने क्रूस से की। Do you remember what his first words from the cross were? क्या आपको याद है कि क्रूस से उसके पहले शब्द क्या थे? Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर। The first word from the cross was a prayer from the Son to the Father. क्रूस पर से पहले शब्द एक पुत्र की ओर से पिता की प्रार्थना थी। Today's prayer is a prayer from a sinner to Jesus.
आज की प्रार्थना एक पापी की यीशु को प्रार्थना है। Jesus, remember me when you come into your kingdom, said the thief on his right hand. यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, उसके दाएं हाथ वाले चोर ने कहा। If you have a Bible, turn to Luke 23, यदि आपके पास बाइबल है तो लूका 23 अध्याय पर खोलिए। beginning at verse 39. 39 पद से शुरू करते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़े लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से लेकर 43 आयतें। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। This is the last conversation that our Lord had with another before his death. ये अपनी मृत्यु से पहले हमारे प्रभु की किसी के साथ अंतिम बातचीत थी। Jesus had a long conversation with Nicodemus. निकोदेमस के साथ यीशु ने लंबी बातचीत की। He had a long conversation with the Samaritan woman. सामरी स्त्री के साथ उसने काफी लंबी बातचीत की। But this brief conversation is just as significant as the others. लेकिन ये संक्षिप्त बातचीत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी के बाकी सभी। And the results were the same. और परिणाम एक समान थे। Repentance, faith, and salvation. पश्चाताप, विश्वास और उद्धार। That says that there are some people who take a long time to be convicted with arguments and numerous inputs before they turn to Christ and be born again. इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोषी सिद्ध होने के लिए वाद विवाद और असंख्य विचारधाराएं पेश करते हैं, इससे पहले कि यीशु की तरफ मुड़कर नया जन्म प्राप्त करें। But for others, it takes only a sentence and everything becomes clear. लेकिन कुछ दूसरों के लिए एक वाक्य की ही आवश्यकता है और सब कुछ साफ हो जाता है। All the four Gospels record that Jesus was crucified with two others. Why? सभी चारों सुसमाचारों में यह दर्ज है कि यीशु को दो और लोगों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? Some think that it was a mockery by the Romans of the one who claimed to be King of the Jews. कुछ लोग सोचते हैं कि ये रोमियों की तरफ से उसका मजाक उड़ाने के लिए किया गया जो यहूदियों का राजा होने का दावा करता था। As if to say, here is your court, two criminals who were crucified with you. जैसे वो कह रहे हों, ये है तेरी अदालत, दो अपराधी जिन्हें तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। But the truth is this. लेकिन सच्चाई ये है This happened in order to fulfill the prophecies. कि ये भविष्यवाणियां पूर्ण होने के लिए हुआ। It was 700 years before Christ that Isaiah prophesied in Isaiah 53 that he will number with his transgressors. मसीह से 700 वर्ष पहले यशाया ने यशाया 53 अध्याय में ये भविष्यवाणी की कि वो अपने गुनहगारों के साथ गिना जाएगा। This is the gospel in a miniature. ये एक छोटे आकार में शुभ संदेश है। The reason this is the gospel in a miniature or the gospel in a capsule is because it shows that there are two ways in which men and women can react to Jesus. ये एक छोटे से आकार का या एक कैप्सूल में शुभ संदेश होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि दो तरीकों से पुरुष और स्त्रियां यीशु को प्रत्युत्तर दे सकते हैं। There are two ways in which Jesus reacts to humanity. यीशु दो प्रकार से मानवता के लिए प्रतिक्रिया करता है। On the cross, there was the reaction of rejection and the reaction of acceptance. क्रूस पर इनकार की प्रतिक्रिया और स्वीकार करने की प्रतिक्रिया दोनों थी। There is no neutrality. यहाँ कोई मध्यस्तर नहीं है। First, let's look at the one who rejected Jesus. आइए पहले उसे देखें जिसने यीशु का इनकार किया। One of the criminals who hung there kept on blaspheming him. उन अपराधियों में से एक ने जो वहां लटके थे उसकी निंदा करना जारी रखा। Matthew and Mark said they reviled him. मत्ती और मरकुस कहते हैं उन्होंने उसे गालियां दी। But Luke ignores the reviling and concentrates on the blaspheming.
लेकिन लूका गालियां देने को अनदेखा करके ईश्वर निंदा पर ध्यान देता है। The repentant criminal may have reviled Jesus too, but never blasphemed. पश्चाताप करने वाले अपराधी ने भी हो सकता है यीशु को गालियां दी हों, लेकिन निंदा बिल्कुल नहीं की। The criminal who blasphemed echoed the cry of the crowd, "You are the Christ, aren't you? Save yourself and us." निंदा करने वाले दूसरे अपराधी ने भीड़ की चिल्लाहट की नकल की, तू मसीह है, क्या तू नहीं है? अपने आप को बचा और हमें भी। You feel the bitterness in that sentence. आप इस वाक्य में कड़वाहट को महसूस करते हैं। He may have been one of the crowd on Palm Sunday who cried out, "Hosanna, save now." वो उस भीड़ में से एक हो सकता है जो खजूरी रविवार को चिल्ला रही थी, होसन्ना, अभी बचा ले। He may have been misled in thinking that Jesus was the fulfillment of his political ambitions. शायद उसके विचारों को भटका दिया गया था कि यीशु उसकी राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ण करेगा। And now his ambitions, his aspirations, and his dreams are shattered. और अब उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं और उसके सपने सब बिखर चुके हैं। Now he saw Jesus to be weak on the cross. अब उसने यीशु को क्रूस पर निर्बल देखा था। I found that most people who have bitterness toward God are the people who pray to God for selfish reasons. मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के प्रति कड़वाहट रखते हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने स्वार्थी कारणों के लिए प्रार्थना करते हैं। When God does not answer their prayer the way they expected, they become mad with God. जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर उस तरह से नहीं देता जैसे वो चाहते थे, तो परमेश्वर के विरुद्ध वो But then there पागल हो was जाते हैं। another criminal. लेकिन फिर वहां पर एक और अपराधी था। This criminal was equally zealous and equally accused and equally reviling Jesus. ये अपराधी भी उतना ही ईर्ष्यालु, उतना ही दोषी और उतना ही यीशु को गालियां दे रहा था। But something has happened in the first hour on Calvary that changed the heart of this one. लेकिन कलवरी के पहले घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका हृदय बदल दिया। We know that as the nails were splitting his hands, he had heard something from Jesus that he had never heard before. हम जानते हैं कि जब कील यीशु के हाथों को चीर रहे थे, उस वक्त उसने यीशु से कुछ ऐसा सुना जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। He heard Jesus to be saying, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." उसने यीशु को ये कहते सुना, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Perhaps it was these words that transformed a reviler to a repenter. शायद यही शब्द थे जिन्होंने एक गालियां देने वाले को पश्चाताप करने वाले में बदल दिया। Perhaps it was these words that transformed a doubter to a believer. शायद यही शब्द थे जिन्होंने एक शक करने वाले को एक विश्वासी में बदल दिया। But ultimately I have to say that it was the grace of God. लेकिन अंततः मुझे कहना पड़ेगा कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। What he said was not only a repentance and surrender to Jesus' lordship, उसने जो कहा वो यीशु की प्रभुता के प्रति केवल प्रायश्चित और समर्पण ही नहीं था। it was not only a request, ये केवल एक निवेदन ही नहीं था, but it was also a rebuke to his comrades in arms. लेकिन अपने साथियों को उसकी तरफ से एक डांट भी थी। He said to his comrade, "Do you not even fear God? उसने अपने साथी से कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? Man, you're about to face God and you are going to end your life with blasphemy and bitterness toward God." मनुष्य, तू परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला है और तू अपना जीवन परमेश्वर के प्रति निंदा और कड़वाहट से समाप्त करने These जा two रहा है। men were comrades. ये दोनों व्यक्ति साथी थे। Both were reviling Jesus together. दोनों मिलकर यीशु को गालियां दे रहे थे। But as the repentant one repents and gives his life to Jesus Christ, he rebukes his friend. लेकिन जैसे ही पश्चाताप करने वाला पश्चाताप करके अपना जीवन यीशु को देता है, वो अपने मित्र को डांटता है। My listening friend, I want you to listen to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुने। Now, when you come to Jesus Christ, one thing is inevitable and unavoidable, and you cannot sidestep it. जब आप यीशु के पास आते हैं तो एक बात अटल और ना टलने वाली है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। When you come to Jesus Christ, there will be a gap between you and your former friends.
जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो आपके और आपके पुराने मित्रों के बीच में एक अंतर आ जाएगा। The day has to come when you say, fellas, I don't enjoy your jokes anymore. वो दिन जरूर आना है जब आपको कहना होगा, साथियों, अब मुझे तुम्हारे लतीफे अच्छे नहीं लगते। I don't enjoy your vulgarity anymore. मुझे तुम्हारी अशिष्टता अब अच्छी नहीं लगती। But come with me to the Savior. लेकिन आओ मेरे साथ उद्धारकर्ता के पास। Just as he has forgiven me, वैसे ही जैसे उसने मुझे क्षमा किया है, just as he delivered me, वैसे ही जैसे मुझे छुड़ाया है, he can deliver you too. वो तुम्हें भी छुड़ा सकता है। This zealot was not a theologian. ये कट्टरपंथी कोई धर्म ज्ञानी नहीं था। He prayed no long and profound prayers. उसने कोई लंबी और गहरी प्रार्थना नहीं की। He merely said, Jesus, remember me when I come into your kingdom. उसने केवल कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। Look at the element of faith in this man as he was dying on the cross. क्रूस पर मरते हुए इस व्यक्ति के विश्वास के तत्व पर ध्यान दीजिए। He did not plead extenuating circumstances. उसने परिस्थितियों को आसान करने के लिए निवेदन नहीं किया। He simply said, Jesus, remember me. उसने बस इतना ही कहा, यीशु मुझे याद करना। In fact, he said to his comrade, we are getting what we deserve. बल्कि उसने अपने साथी से कहा, जो हमारे साथ होना चाहिए था वही हो रहा है। Now you understand why I said this is the gospel in a capsule. अब आप समझते हैं कि मैंने क्यों कहा था कि ये एक बीज में शुभ संदेश है। He was not only acknowledging his sin, वो केवल अपने पाप को ही स्वीकार नहीं कर रहा था, but he adds a word of testimony about Jesus. परंतु वो यीशु के विषय में साक्षी में कुछ शब्द भी जोड़ता है। This criminal's great testimony was, this man has done nothing wrong or anything out of place. यीशु के विषय में इस अपराधी की महान गवाही थी कि इस मनुष्य ने कुछ भी गलत या अस्त व्यस्त नहीं किया। He came from reviling Jesus to testifying for Jesus, all in a very short period of time. वो बहुत थोड़े से समय में ही यीशु को गालियां देने से हटकर उसकी गवाही देने लगा। That is the power of the gospel. ये है सुसमाचार की शक्ति। The man does not ask to be saved from the cross. उस मनुष्य ने उसे क्रूस से बचाने के लिए नहीं कहा। He only asked that somehow, sometime in the distant eternity, he would remember him when he comes into his kingdom. उसने केवल यही कहा कि कभी किसी तरह दूरवर्ती अनंतता में वो उसे याद करे जब वो अपने राज्य में आए। No doubt this dying criminal saw on top of Jesus' cross those words, King of the Jews. कोई संदेह नहीं कि इस मरते हुए अपराधी ने यीशु की क्रूस के सबसे ऊपर लिखे हुए वो शब्द देखे थे, यहूदियों का राजा। And that was enough for him to believe that this was the Messiah King. और इतना काफी था उसे ये विश्वास करने के लिए कि यही राजा मसीह था। So in humility he cried out, Jesus, remember me. सो वो नम्रता से चिल्लाया, यीशु मुझे याद करना। I want you to remember some things here. मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कुछ बातें याद रखें। Remember that all his disciples except John had fled. याद रखें कि यूहन्ना के सिवाय उसके बाकी सभी शिष्य भाग चुके थे। Remember that the organized religion had repudiated him. याद रखें कि संगठित धर्म ने उसका परित्याग कर दिया था। Remember that the mob had reviled him. याद रखें कि भीड़ ने उसे गालियां दी थी। This man had no evidence of who Jesus was, and yet by the grace of God, he looked over and said, Jesus, remember me. यीशु कौन था इसका उस व्यक्ति के पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से उसने उसकी ओर देखा और कहा, यीशु मुझे याद करना। Others have seen Jesus raise the dead, open the eyes of the blind, heal the sick, and yet they did not believe. औरों ने यीशु को मुर्दों को जिलाते हुए, अंधों की आंखें खोलते हुए और बीमारों को चंगा करते हुए देखा था और फिर भी विश्वास नहीं किया। Yet this man sees Jesus dying on the cross and he surrenders to him. ये व्यक्ति यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखता है और फिर भी उसके सामने समर्पण करता है। There were two reactions to Jesus and they symbolize humanity's reaction to Jesus. वहां यीशु के प्रति दो प्रतिक्रियाएं थी और ये यीशु के प्रति मानवता की प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। It is only in two ways. One rejects him, the other accepts him. ये केवल दो तरह से है, एक उसे अस्वीकार करता है और दूसरा स्वीकार करता है।
This has been and will always be the case with Jesus until he comes back. और ये मसला यीशु के साथ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा जब तक कि वो वापस नहीं आता। You either accept him or reject him. या आप उसे स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। Universalism that says everyone will make it to heaven is not Christianity. वो विश्वव्यापकता जो कहती है कि हर कोई स्वर्ग में जाएगा, वो मसीहत नहीं है। It is very important to see Jesus' reaction to these men. इन मनुष्यों के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया देखना अति महत्वपूर्ण है। Jesus did not get bogged down and get preoccupied with his pain to assure repentant sinners. पश्चाताप करते हुए पापियों को आश्वस्त करने के लिए यीशु ने हौसला नहीं छोड़ दिया और अपनी पीड़ा में ध्यानमग्न नहीं हो गया। This thought hit me in a very special way. इस विचार ने मुझे बहुत खास प्रकार से झटका दिया है। For if there's one thing a busy person like myself fights against all the time is preoccupation. क्योंकि यदि कोई व्यस्त व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ हर समय एक ही बात का सामना करता रहता है, तो ये है ध्यान मगनता। Preoccupation with very busy schedule. व्यस्त कार्यक्रम में मगनता। Preoccupation with the needs of people. लोगों की आवश्यकताओं में मगनता। But thank God, Jesus Christ, the eternal Son of God, the one who split the ages into AD and BC, was not too preoccupied to save this man. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत पुत्र जो युगों को ईसा पूर्व और ईसवी सन में बांटता है, वो भी इतना ध्यानमग्न नहीं था कि इस व्यक्ति को नहीं बचा पाता। Don't ever think that God is too preoccupied in running the universe to care about you. ये कभी ना सोचें कि परमेश्वर इस सृष्टि को चलाने में इतना ध्यानमग्न है कि उसे आपकी चिंता नहीं है। In fact, Jesus gave this man more than he asked for. बल्कि यीशु ने इस मनुष्य को उसके मांगने से बढ़कर दिया। The man did not ask to go to paradise with Jesus. उस व्यक्ति ने यीशु के साथ स्वर्ग जाने की मांग नहीं की थी। But Jesus says, today you shall be with me in paradise. लेकिन यीशु कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। Friends, I want you to listen to what I'm going to tell you. मित्रों, मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। It is too late for a person after he dies to make it to heaven. एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। You either know that you're going to heaven now or you're not. या तो आप अभी जानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या आप नहीं। There is no second chance. कोई दूसरा अवसर नहीं है। So you need to come to Christ now. इसलिए आपको अभी मसीह के पास आने की आवश्यकता है। Will you come to him today? क्या आज आप उसके पास आएंगे? If that is your desire, I want you to pray the following prayer with me. यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I repent of my sin. मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूँ। I turn to Jesus Christ and receive him as my Savior. मैं यीशु के पास आता हूँ और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। Give me the strength and the power to live for him. मुझे सामर्थ दें और उसके लिए जीने की शक्ति दीजिए। In his name I pray. उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।